we must have only know about a few name of only few schemes, like when we see watch television or we listen to radio, we only come across a few schemes, flagship schemes, and we only know the name of the scheme and what is in general it means to do. But the requirement, the eligibility criteria, what documents are required, am I eligible or not, these things are not people are not fully aware of these things, and thus it makes difficult for the general public to enroll themselves for such schemes. And now this is the thing about the flagship schemes. Now those schemes which are not so much popular, now we can think that what response to those schemes might get. So like I was saying, not only the general population, even person holding constitutional positions, social activists, or functionaries of various political parties do not have complete grip on all the schemes and associated benefits. The target population, eligibility criteria, and type of benefits offered vary across to the schemes. Different schemes have different eligibility and different requirement. No single agency, portal, or application is available to supply to all the requisite information. Now there are some missing information. What are the missing information? The first level of missing information is whether there is any such scheme for one's actual need. If such scheme exists, whether one can be eligible to apply for such scheme or not. The second level of missing information is about what is the process of applying for the scheme and how one can get more information about the said scheme. Even one if one is able to apply for the scheme, the third level of missing information is about how to avail the benefits, or things related to documentation, requirements, etc. So like I said, there is not even a single platform which provides such integrated approach wherein one can get all the queries answered. To address several issues to one basket, ISRA India came into being, wherein one can get information of all popular welfare schemes of both center and state government, test their eligibility, and can apply for the same scheme from the very same platform. So I would like to show a demo to our participants. Like, so, yeah. So this is the website of ISRA. It was launched, in October by Sri Hiralal Jeevanji. So now, from how can we check the eligibility? We can see there is a button, and we have to click on that. Uh, Type a name and a mobile number. Email address is optional. Now after that we have to provide certain information, basic information. Mail, we have covered almost all occupation. So and the particular participant or the member then can search from there. Domicile. And so yeah, a person who is unmarried, is born in the year 1918, belongs to the BPL category, does not belong to the Divyang category. He is eligible in 4 state government schemes, Uttar Pradesh scheme, state, and 17 center government schemes. So you like this, ISRA makes things easier, the process simpler for all the people who want to apply for the government schemes. And it's make the process very simple. Like it hardly took a second to recognize how many schemes I am eligible in. So this is the platform that ISRA has been developing for the last 1 year. And
we have received a tremendous amount of response. In, like, for example, in Facebook, we have reached more than around 10 lakh people. On LinkedIn, we have reached almost around 2 lakh people. On Twitter, we are still expanding, and on Instagram, we have a good number of base. So that's all from my side, and that's about ISRA. So thank you. Over to Abhishek ji. Thank you. धन्यवाद मोहक जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मॉडल गांव, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर भारत, उसी साथ साथ हम भी लेकर चल रहे हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसकी जानकारी घर में एक मोबाइल के माध्यम से अगर प्राप्त कर पाए, अपने मोबाइल के माध्यम से ही वो आवेदन कर पाए, तो इससे ज्यादा सुविधाजनक और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब व्यक्ति खुद से योजनाओं के लिए आवेदन कर पाएगा, जब व्यक्ति खुद से सारी जानकारी एकत्रित कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत अग्रसर कदम होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज हमारे साथ मॉडल गांव के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सौरभ लाल जी जुड़े हुए हैं। सौरभ लाल जी को आमंत्रित करने से पूर्व मैं इनका एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूंगा। सौरभ लाल जी की अगर हम बात करें तो सौरभ लाल जी मॉडल गांव के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। साथ ही साथ इनकी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है कंटेंट कल्चर, जहां पर ये कंटेंट, जो आज हम बात करते हैं कि मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो वहां पर ये काफी समय से लगातार कार्य कर रहे हैं। और मॉडल गांव, क्योंकि आज हमारा जो विषय है मॉडल गांव, उसमें इनकी जो दायित्व है या इनके जो कार्य हैं वो अत्यंत सराहनीय, हम इन्हें सुनेंगे और जानने का अवसर प्राप्त होगा। सौरभ लाल जी ने आईसीआईसीआई बैंक, ऑडी, मर्सिडीज, सैमसंग, एप्सॉन, कोलगेट जैसी कई कंपनियों के साथ एक्सपेंशन मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए भी काम किया हुआ है। साथ ही साथ सौरभ जी ने अपनी एमबीए की पढ़ाई मुंबई से पूरी करने के बाद लखनऊ में अभी वर्तमान में मॉडल गांव के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं सौरभ जी को आमंत्रित करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर जो मॉडल गांव की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसे दिखाते हुए आप हमें समझाने का प्रयास करें कि मॉडल गांव क्या है और किस तरह से कार्य करता है, जिसके बाद हम डॉक्टर हीरालाल जी से इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सौरभ लाल जी प्लीज। अभिषेक अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मंच देने के लिए। हम इसरा इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया है और एक हमें इस ऐसा मंच दिया है कि जिससे हम आपसे रूबरू हो पाएं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मैंने सुना कि हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे इसरा के माध्यम से गवर्नमेंट की स्कीम्स को बहुत ही सिंपल तरीके से और एक सशक्त तरीके से हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय काम है अपने आप में। और इसी इसी चर्चा को आगे लेके जाते हुए मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो, और हम एक मॉडल विलेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मॉडल गांव जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम एक गांव को और धीरे धीरे हर गांव को हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो आत्मनिर्भर गांव या आत्मनिर्भर कोई भी यूनिट होगी तो वो तभी पॉसिबल है जब हम एक आत्मनिर्भर इंडिविजुअल बना सकें। अगर हम एक हर व्यक्ति को एक आत्मनिर्भर बना सकें, और उसकी शुरुआत एक सोच से होती है। और ऐसी ही एक इंडिविजुअल सोच, एक व्यक्तित्व की सोच से इस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। डॉक्टर हीरालाल जब बांदा में एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड थे, सर अभी करंट आईएएस सर्विंग ऑफिसर हैं, और जब वो बांदा में एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड थे तो उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे काम किया। और उनमें से कुछ प्रमुख अगर मैं आपके सामने रखूं तो
हम सभी जानते हैं कि बांदा बुंदेलखंड रीजन में आता है, जहाँ पानी की समस्या बहुत पुरानी है और बहुत जटिल है। लेकिन 1.5 साल के इनके फोकस्ड काम से वहाँ पे विद इन 1.5 ईयर्स 1.34 मीटर ग्राउंड वाटर लेवल का जो स्तर है वो बढ़ गया। इन्होंने और बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम किया, जैसे कृषि पे काम किया, जिससे 18.5% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्रॉप्स की। और ये सारा इसी तरह से कुपोषण हो गया, जेल रिफॉर्म्स हो गया, मेल न्यूट्रिशन कम करने की बात हो गई। बहुत सारे इंडिकेटर्स पे इन्होंने अलग अलग काम किया और बहुत ही सराहनीय और प्रूवन रिजल्ट देखने को मिले। और इसी दौरान सर की मुलाकात मिस्टर मुनीश से हुई। मिस्टर मुनीश का मैं परिचय दे दूं, आज अस्वस्थ होने की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुनीश सर हमारे मॉडल गांव संस्था के प्रेसिडेंट हैं और सर नाबार्ड से चीफ जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए हैं। और जब उनकी मुलाकात डॉक्टर हीरालाल से हुई और इन्होंने जो अलग अलग विकास के कार्य किए बांदा में, उस पर चर्चा शुरू हुई, तो एक ये विचार दिमाग में आया कि जब आप इन सारे कामों को इकट्ठा करके देखें, तो ये वही काम है, ये वही प्रयास हैं जो किसी भी गांव को एक आदर्श गांव, एक मॉडल गांव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और वहीं से एक परिकल्पना की शुरुआत हुई मॉडल गांव के रूप में, और आज ये एक संस्था बन के तैयार है, जो लोगों के बीच जा रही है, लोगों से इस बात पे चर्चा कर रही है कि कैसे हम उनके गांव को एक मॉडल गांव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप विकास को परिभाषित कैसे कर सकते हैं विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से। जो परिभाषित कर रहे हैं आप विकास के कार्यों को, उनको ज़मीन पे कैसे उतार सकता है, कौन उतार सकता है, और वहाँ पे हमारा चेंज मेकर की एक भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और सामाजिक विकास के साथ आर्थिक विकास की बात हम कैसे करें, तो वहाँ पे जो हमारा फोकस एफपीओज और एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज पे है, हम उस पे ध्यान दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब आप एक साथ देखते हैं, तो कहीं न कहीं मॉडल गाँव का जो एक लक्ष्य है कि गाँव का एक चौमुखी विकास हो सके, उस ओर हम बढ़ने के एक विज़न लेके चल रहे हैं। और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, जिनका एक सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, जो उस सोच के लोग हैं और हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आज डॉक्टर हीरालाल, जो कि जनक हैं इस आइडिया के, वो हमारे साथ हैं। और मैं ये चाहूँगा कि वो कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट से परिचित करें, और आपके जो भी सवाल हों, जो भी ख्याल हों, जो भी सुझाव हों, उन्हें हम इस चर्चा पे लेकर आएँ। तो डॉक्टर हीरालाल प्लीज। हाँ अभिषेक, जी हाँ सर। बात करें, शुरू करें। जी जी बिल्कुल सर। देखिए, इसरा मेरी पहली संस्था है और मॉडल गांव दूसरा, ठीक है। इसरा से मैं शुरू से जुड़ा हूँ, अभिषेक से हमारी बात होती रहती है। और इसरा और मॉडल गांव का गंतव्य एक है क्या? दोनों का डेस्टिनेशन एक है। डेस्टिनेशन एक यूं है कि इसरा भी ये चाहता है कि गांव के विकास या शहर के विकास, देखो जब हम गांव का विकास कहते हैं तो उसमें शहर छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि जो शहर में लोग आए हैं वो देहात से ही आए हैं, उनका देहात में गांव में मकान, दुकान, जमीन है। तो जैसे आप हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं शहर में रहता हूँ लेकिन मेरा गांव बस्ती में है, मेरा गांव से, शहर से ज्यादा लगाव गांव से है। तो अगर हम गांव कहें तो ये समझ जाइए, इट इज अंडरस्टूड कि कुछ लोग तो केवल देहात में हैं और कुछ लोग देहात शहर में दोनों हैं। 99% ऐसे ही लोग हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो शहर के लोग हैं जिनका देहात से कोई लेना देना नहीं। मैं 1% से ज्यादा नहीं मानता, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। तो जो इसरा का काम है, अभी आप लोग बता रहे थे, इसरा की जो रिपोर्ट आप लोग पढ़ रहे थे कि लिंक्डइन पे इतने लोगों ने ज्वाइन किया, ट्विटर पे ज्वाइन किया। भाई ज्वाइन तो आदमी जुड़ता तभी है और अच्छा जब उसे फायदा होता है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इसरा ने अच्छा काम किया और इसी वजह से उसकी संख्या बढ़ रही। इसरा चाहता है कि उसको एक ऑटोमेटेड, सभी लोगों को एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म दिया जाए और उस ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जाए हाउ टू यूज to get the benefit of all the schemes programs of the government provided for them। तो ये बड़ी अच्छी बात है
और मेरी शुभकामनाएं। अब ये जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि गांधी जी ने जो सपना देखा कि हमारे देश का विकास, हमारा देश विकसित तभी हो पाएगा जब उसका गांव विकसित हो जाए। अगर हम ये सपना देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि बिना गांव के विकसित हुए देश विकसित हो जाएगा, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी 70% एक्सक्लूसिवली गांव पे निर्भर है। तो जब 70% विकसित नहीं होगा तो विकसित होने का सपना हम नहीं देख पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो करीब 1.5 साल में हम लोगों ने बांदा में 20-22 प्रयोग किए, उसके अच्छे रिजल्ट रहे, उसी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मॉडल गांव के रूप में हम लोग इसको प्रोग्राम के रूप में शुरू किए हैं। और इसके सब कुछ करता धरता श्री मुनीश गंगवार जी हैं, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडल गांव। वो रिटायर्ड सीजीएम हैं नाबार्ड के। मिस्टर सौरभ लाल इसके सीईओ हैं, और मैं इसका ऑनरेरी मेंटर और एडवाइजर हूं। और मॉडल गांव की परिकल्पना कोई नई परिकल्पना नहीं है, बहुत दिनों से गांव पे काम हो रहा है। कोई मॉडल गांव कहता है, कोई स्मार्ट गांव कहता है, कोई मतलब उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है, कोई आदर्श गांव कहता है, लेकिन कहानी यही है कि गांव में हर तरह की सुविधाएं हो, गांव हरा भरा हो, गांव में पॉजिटिव वाइब्स हो, और गांव के लोग गांव में रहना चाहें। गांव से उनको अगर कोई कहे बाहर चले जाओ तो उनको दुख हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज में की स्थिति ये है कि गांव में लोग रहना नहीं चाहते हैं, गांव से हट करके वो लोग निकल करके शहर की तरफ आना चाहते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि गांव में बेरोजगारी है, गांव में गरीबी है, गांव में लाचारी है, गांव में सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग गांव को छोड़ रहे हैं। यदि हम लोग गांव को संपन्न बना दें, मॉडल गांव बना दें, सभी चीजें हो जाएं, तो लोग उल्टा करेंगे। क्या? शहर से लोग रिटर्न बैक आएंगे। कहाँ? देहात में। अभी कोविड में ऐसा ही हुआ, ये बात साबित हो गया। जो लोग हर जिले से 25 से 30% लोग अपने जिले से बाहर दूसरे जगहों पे, उसी जिले में या दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में, विदेशों में गए हुए हैं कमाने धमाने या किसी धंधे के लिए। जब ये विपत्ति आई कोविड की, तो सब लोग, मैक्सिमम लोग गांव लौट के आए, तो गांव ने ही सहारा दिया। तो ये साबित हो गया कि विपत्ति का साथी या बुरे दिनों का साथी कौन है? शहर नहीं, गांव है, अपना वो वतन। तो मॉडल गांव को बनाने के लिए हम लोगों ने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। जरा इसको स्लाइड चलाओगे? तो इसको हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से सरसरी तौर पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसका मिशन है, इसका विजन है मॉडल गांव का, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, गांव का चौमुखी विकास, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो सारी सुविधाएं हो जो एक शहर में होती हैं, बल्कि शहर से अच्छी सुविधाएं हो, हवा पानी, कोई प्रदूषण ना हो। तो चौमुखी विकास इसका मिशन है। प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए। आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। हाँ सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ, ये हो गया। अभिषेक जी कह रहे हैं आपने को-होस्ट बना दिया, लेकिन ये कह रहे हैं हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप आराम से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अप्रूवल है आपको। देखो वही दिक्कत। हाँ, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, हमें तो सारी चीजें पता ही हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एक मिशन है। मिशन यह है कि गांव में विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से डेवलपमेंट का एजेंडा स्थापित कर, और गांव में ही चेंज मेकर का चयन कर, उन्हें डेवलप कर सर्वांगीण विकास करना। तो विजन है चौमुखी विकास, विजन है चौमुखी विकास। और इसका जो है मिशन है कि उस गांव में विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से, आप बोलिए सर। विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से विकास के जो 25 एजेंडे हैं, गांव के सभी तक पहुंचाना, और चेंज मेकर का चयन कर उनको डेवलप करना, साथ में
सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है। तो ये मिशन और विजन हो गए। नेक्स्ट, अब रही बात, इसको हम लोगों ने सरल तरीके से बनाने के लिए इसके 3 पार्ट, क्योंकि देखिए अगर आपका प्रोजेक्ट सरल नहीं है, आसान नहीं है, तो वो फेल होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना, जितना सरल, जितना सिंपल आपका काम प्रोजेक्ट होगा उतना। विलेज मैनिफेस्टो पार्ट 1 है, चेंज मेकर पार्ट 2 है, एफपीओ एफपीसी पार्ट 3 है। इसको बहुत आसानी से हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। विलेज मैनिफेस्टो क्या है? विलेज मैनिफेस्टो में का वो हमारा एक पन्ना है, एक माध्यम है, इसमें 25 पॉइंट है, जिसके माध्यम से हम गांव वालों को विकास के बारे में बताएंगे, विकास के वो कौन कौन से मुद्दे हैं उसके बारे में बताएंगे, और विकास के उन 25 मुद्दों पे हम आम सहमति तैयार करेंगे। इससे गांव का लोग धनी होगा, उसका अपना रोजगार होगा, गांव छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, मॉडल गांव बनेगा, पूरे देश में नाम होगा, सभी का जीवन खुशहाल और खुशहाली हरियाली होगी और सभी लोग मजबूत होंगे। ये वो मुद्दे हैं विलेज मैनिफेस्टो के। सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवाद तंत्र, जैविक उत्पाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का नियम, गांव का बायोडाटा। मतलब ये जो हमारे 25 पॉइंट हैं, इन 25 पॉइंट को विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से, गांव घोषणा पत्र के माध्यम से उस गांव के जन जन तक पहुंचाना है। उनके दिल, दिमाग और सोच और खून में ये 25 पॉइंट को स्थापित कर देना है, जिससे कि वो इसके बारे में बात करें, इसके बारे में चर्चा करें और इसका पाने का प्रयास करें। देखिए ये घोषणा पत्र का एक मॉडल है। यहाँ कोई भी आदमी अपना फोटो लगा ले और अपना नाम लिख ले और गांव में प्रचार। अभी आपका जब ये शुरू हुआ उसके पहले हम लोग, अब तक 25 लोगों ने घोषणा पत्र बना करके और शुरू कर दिया। हम लोग उन्हीं का वेबिनार कर रहे थे घोषणा पत्र पे। हम लोग हर पार्ट पे भी वेबिनार कर रहे हैं, होलिस्टिक वेबिनार कर रहे हैं। इस तीनों के जो इसके तीनों जो धुरी हैं, तीनों पे अलग अलग भी काम कर रहे हैं, तीनों पर एक साथ। तो ये हमारा विलेज मैनिफेस्टो है। चेंज मेकर के बारे में आपको बता दूं कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर जगह में ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर रातों दिन अपने बारे में नहीं सोचते, गांव के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, हर जगह है। तो गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित करना और चिन्हित करके उनको ट्रेंड करना है। उन्हें जो उसी जनपद में अच्छी जगह है। देखिए ये चयन की प्रक्रिया है, ये हम लोगों ने एक बनाया है कि जिसका हम चयन करेंगे उसका नाम, व्यवसाय, पढ़ाई कितना है, उसके पास आने जाने का साधन है कि नहीं है, संवाद कला है कि नहीं है, सोशलाइजेशन है कि नहीं है, सीखने की कला है, ये सब हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है, एक मानक बनाया है चयन प्रक्रिया का। और दूसरा, हम उनको फिर जब उनको चयन करेंगे तो प्रशिक्षण देंगे। पहले तो उस जिले में जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ जाएं, सीख के आए, अपने गांव लागू करें। फिर प्रदेश में जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ भेजेंगे, जाएं और सीख के आए और लागू करें। फिर दूसरे स्टेट में भेजेंगे और फाइनली इनको हम लोग विदेश भी भेजेंगे। अब इसमें जो खर्चा आएगा ये पूलिंग सिस्टम होगा। जो लोग जाएंगे जितना खर्चा आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे और जिसके हिस्से में जितना आएगा उतना वो कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से ये काम होगा। क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते हैं तो पैसा खर्च करते हैं ना, और हम जनता को इम्पावर करने जा रहे हैं थ्रू नॉलेज। नॉलेज इज पावर। और वो जाएंगे, पावर, नॉलेज का पावर पाएंगे, इम्पावर होंगे और आकर के अपने गांव का विकास करेंगे। तो ये चेंज मेकर है। और थर्ड पार्ट है एफपीसी। टाटा, बिरला और सबका इनका नाम क्या है? ये धनी क्यों है? क्योंकि इनके पास एक कंपनी है, ये कंपनी के मालिक हैं, वही कंपनी इन्हें धनी बनाता है, जिससे कि ये लोग क्या है, ये लोग पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि ये धनी है, दोनों को रोजगार। तो सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। सभी प्रदेश सरकार और सभी तरह की सरकारें इसमें जी जान से लगी हुई हैं कि गांव स्तर पे एक कंपनी बना दिया जाए और वो कंपनी गांव वाले मिलके बनाएंगे और गांव वाले ही मिलके चलाएंगे। इसीलिए उसमें एक राइडर लगा दिया है कि कम से कम 300 लोग हों, तभी जो कंपनी को चलाने और बनाने की सहायता है सरकार तभी देगी। ये राइडर अच्छा लगाया, इसलिए लगाया जिससे कि पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हों, पूरे गांव के लोग एक कंपनी के रूप में इकट्ठा हों और मिलके चलाएं। तो कंपनी, एक गांव समझिए एक कंपनी हो जाएगी
और उस कंपनी में एक तरफ कृषि डालेंगे तो दूसरी तरफ कृषि व्यापार मिलेगा, एक तरफ बेरोजगार डालेंगे तो दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा। ये सब उसके बारे में है। इससे देखिए, इस सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग इसको लागू कर रहे हैं तो इसमें हमारे 4 मार्गदर्शक हैं, राम शरण वर्मा जी, भारत भूषण त्यागी जी, कमल सिंह चौहान साहब, बाबूलाल दैया। ये सभी लोग कृषि के पद्मश्री हैं और ये लोग हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें राय देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने करके दिखा दिया है जमीन पे। और ये हमारे 2 पूर्व कुलपति और एक प्रोफेसर हैं अमेरिका के, वो हमारे सब ये सब लोग एडवाइजर हैं। IIM के ये गुप्ता जी हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमारे एडवाइजर हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो पूरे तन मन धन के साथ गांव को मॉडल गांव बनाने में लगी हुई है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ICCI फाउंडेशन इसकी फंडिंग कर रहा है। और सबसे इसका अच्छा पहलू ये है कि जैसे ही उन्हें ये पता लगा सोशल मीडिया पे कि हम लोग इस तरह से कुछ एक विचार बना रहे हैं, उनका खुद ऑफर आया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का ये काम बहुत अच्छा है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग आपको को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस तरह से हमारे गांव कनेक्शन, लोक पंचायत, बुंदेलखंड न्यूज, ये सब लोग पार्टनर हैं। तो एक अच्छी टीम बन गई है, पॉजिटिविटी क्रिएट हो गया है, इसीलिए ये अच्छी दिशा में जा रहा है। अब मॉडल गांव से जुड़ना है तो हमारा ये modelgaon.org वेबसाइट है, ये नंबर है, ये ईमेल है। और मॉडल गांव का हर सोशल मीडिया पे अकाउंट है। आप सभी लोग हमसे जुड़िए और जुड़ करके हम लोगों के साथ हैंड होल्डिंग करके, जो क्योंकि आपका इरादा हमारा इरादा एक, हम लोगों को पहुंचना एक ही जगह है, विकास करना है गांव का। तो अगर आप और हम मिलके साथ काम करें, इसरा और हम लोग मिलके साथ काम करें, तो हम दोनों लोगों का रास्ता आसान होगा और गंतव्य जल्दी मिल जाएगा। हम जल्दी ही अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। ये इसका सार है। अब मैं समझता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये मॉडल, देखिए, ये कहने सुनने में आसान तो है, कहना तो आसान है, लेकिन काम जटिल नहीं है और ना कठिन है। थोड़ा पेन टेकिंग है और लंबा है, ये टाइम टेकिंग है, इसको हम जटिल नहीं मानते हैं। क्यों? हमारा ये मानना है कि जब हम बांदा में पानी को बचाने का अभियान चला रहे थे तो मैं एक बात कहता था, एक प्रोवर्बियल सेंटेंस हर लेक्चर में, हर भाषण में बोलता था कि लोगों के दिल और दिमाग में मैं कुआं तालाब नदी खोदना चाहता हूं। मौके पर कुआं तालाब नदी खोदा जाए ना खोदा जाए ये मेरे लिए माने नहीं रखता, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में कुआं तालाब खोदना मेरी प्राथमिकता है। इसका क्या मतलब था कि जब लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब खुद जाएगा तो वो तो जमीन पे खोदेंगे ही। यही फिलॉसफी हम यहाँ भी लागू कर रहे हैं कि मॉडल गांव आम जनता के दिल दिमाग सोच खून में बन जाना चाहिए। एक बार आम जनता, जन सामान्य के दिल दिमाग में मॉडल गांव बन जाएगा तो मॉडल गांव मौके पर एक्चुअल में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट। और थैंक यू अभिषेक एंड इसरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग जुड़े और इस मुद्दे पे बात किए। अभिषेक अग्रवाल जी। जी धन्यवाद सर। आप में से अगर किसी के भी कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे हम मॉडल गांव की टीम से वो प्रश्न के जवाब ले सकें। कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया है कि जैसा कि अभी उसमें देखा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और जानकारी, तो क्या मॉडल गांव की टीम केवल उत्तर प्रदेश के लिए है या पूरे भारत में मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रही है? पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। हमसे कोई भी जुड़े पूरे उत्तर पर, क्योंकि देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हम उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही है, लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश में लिमिट नहीं है। बिहार के लोग हमसे जुड़ गए हैं, हमसे जो है मध्य प्रदेश के लोग जुड़ गए हैं, हमसे कर्नाटका में हम लोगों ने वेबिनार किया, वहाँ के लोग जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के लोग जुड़ गए हैं। तो ये फॉर होल कंट्री, not only whole country, if anybody abroad will connect with us, we will hand hold with them also.
हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राम सूरज जी जुड़े हुए हैं। ये ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, उदारी ग्राम पंचायत में। इनका प्रश्न है कि एफपीओ या अपने गांव में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इस पर मॉडल गांव की टीम किस प्रकार से मदद कर सकती है या किस तरह से संपर्क करें? देखिए, ये मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, हम लोग बताएं कि अगर ये हम लोग उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग एफपीओ को पनपाने का, चलाने का नोडल बनाया गया है। उनके साइट पर 650 एफपीओ हैं जो बन गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं। वो चल क्यों नहीं पाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको उसको चलाने की ना तो उनको जानकारी है और ना वो जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। हम लोगों ने, मॉडल गांव ने वो सूची उतार लिया। हम लोग लगातार उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने एफपीओ बना लिया है तब तो हमारी इस पोर्शन पे हम लोग आप हमारे मॉडल गांव से कनेक्ट हो जाइए। हम लोग लगातार उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सपर्ट बुला रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, ये करेंगे। एक तो जो बना है उसको कैसे चलाया जाए, इस पर काम करें। और यदि आपका अभी एफपीओ नहीं बना है तो हम लोगों की राय ये है कि पहले आप अपने गांव में ये जो हमारा विलेज मैनिफेस्टो है इस पर छपवाइए। गांव में पहले माहौल बनाइए, पहले हल्ला काटिए, जन जन को विकास के 25 मुद्दों पर सहमत करके एक माहौल बनाइए, एक जनमत बनाइए। जैसे चुनाव में होता है कि भाई ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, क्योंकि तो इसी को उसी तरह से ये जो आपके 25 मुद्दे हैं वो एक तरह से कैंडिडेट हैं, वो मुद्दा है। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो पहले विलेज मैनिफेस्टो के मार्फत आप पूरे गांव में एक विकास का माहौल क्रिएट करिए और फिर आप हमसे जुड़ेंगे। हम लोग चेंज मेकर में आपके जो 10-15 लोग गांव के अच्छे लोग होंगे, समाज सेवी होंगे, उनको हम लोग, हमारी जो प्लानिंग है, अभी हम लोग अपने साइट पे ऑनलाइन बहुत सारे जो है मटेरियल डालेंगे जिससे कि वो पढ़ें और चेंज मेकर बने। 1 सप्ताह के अंदर वो अंडर प्रोसेस है, आ जाएगा वेबसाइट पे। तो हम उन्हें चेंज मेकर बनाएंगे और इसी बीच में आपको नया एफपीओ बनाने की तैयारी। लेकिन मेरी राय है, अगर आपने नहीं बनाई है तो 3-4 महीने इन दोनों मुद्दों पे काम करिए, फिर आपका एफपीओ बनने में कोई देरी नहीं। 1 सप्ताह में एफपीओ बन जाएगा और बनने के बाद वो रुकेगा नहीं, दौड़ने लगेगा। हम ही बनवाएंगे, एफपीओ बनवा देंगे, सारा गाइडलाइन देंगे। हमारे साथ क्योंकि आज भारत भर से 14 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उड़ीसा से रमेश प्रधान जी हैं। ये इन्हें विलेज मैनिफेस्टो चाहिए क्योंकि ये पुरी में अभी वर्तमान में है और पुरी में भी ये मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है उसे लागू करना चाहते हैं। तो मॉडल गांव की टीम से रिक्वेस्ट है कि इन्हें जो मैनिफेस्टो है, या रमेश जी आपको हम वेबसाइट मॉडल गांव अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सारी जानकारी मॉडल गांव के प्राप्त हो जाएंगी। जी सर, चैट में सारे लिंक शेयर कर दिए हैं सर मैंने मॉडल गांव के, वो देख लें और हमसे जुड़ जाएं। जी जी। अगला है हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से दिलीप धनराज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। दिलीप धनराज गुप्ता जी आत्मनिर्भर मंदसौर को लेकर लगातार काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मॉडल गांव की टीम को आमंत्रित किया है कि मॉडल गांव की टीम अगर मंदसौर में इस प्रकार का कार्य करती है तो अत्यंत प्रशंसा होगी। नहीं, आप उनसे कहिए कि जो मंदसौर में वो अच्छा काम, पहली बात तो कुछ नहीं है। आप अभी, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, सभी लोग अपने मोबाइल पे www.modelgaon.org खोल लीजिए। वहां पे पहले तो आप हमसे कनेक्ट होइए भैया, पहले हमसे रिश्तेदारी तो बनाओ। तो रिश्तेदारी बनाने का सबसे आसान तरीका है www.modelgaon model खोल लीजिए। और यहाँ हमारी मोबाइल नंबर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ईमेल सब कुछ है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, आप पहले हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके देखिए, हम आपके गांव में आएंगे, आपके गांव में माहौल बनाएंगे। हमारी पूरी मॉडल गांव की बारात आएगी, लेकिन पहले बारात की तैयारी तो आप करिए। उसका पहला ये तरीका है कि आप पूरे गांव, ये आप मैनिफेस्टो छपवा करके, अपना फोटो लगवा करके पूरे गांव में एक माहौल बनाइए, एक बात। फिर पूरे गांव का मोबाइल नंबर इकट्ठा करिए
और हम लोग एक वेबिनार कर देंगे यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन, जैसे हम आपका कर रहे हैं। अब एक माहौल बन गया और लोग सोचने लगे, लोगों के दिल और दिमाग में बात हो गई, तैयारी हो गई, सब चीज हो गया। हम आपके गांव भी आएंगे और आपके गांव में बिल्कुल 1 to 1 बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे माहौल तो बना लें। ये आपका ऑफर बहुत अच्छा, हम आएंगे और आपको विलेज मैनिफेस्टो सब साइट पे अपलोड है ना, तो साइट पे विलेज मैनिफेस्टो अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी साइट पढ़ लीजिए, पूरी सूचनाएं। हम लोग अपनी साइट को बिल्कुल ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कुछ मांगना ना पड़े, सब कुछ वहीं मिल जाए। एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, 1 सप्ताह में इट विल बी ए कंप्लीट ऑटोमेटेड साइट। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हम वो जो 111 लास्ट में नंबर है मॉडल गांव का, उससे मांगिएगा, वो दे देंगे। ऑनलाइन भी ये डाउनलोड कर सकते। अगर किसी के भी कोई अगर डाउट है या अगर किसी को भी मॉडल गांव से जुड़ने में कोई समस्या है तो वो इसरा से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप हमसे भी संपर्क करें, हम आपको साथ में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ त्रिपुरा से एक प्रश्न आया हुआ है कि सर, त्रिपुरा में मेरे पास 50 लोगों की टीम है, मैं जुड़ना चाहता हूं, तो क्या वेबसाइट में मुझे कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है? यस, वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो हम लोग रजिस्ट्रेशन का वो है, नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं। आपको नाम मोबाइल नंबर भर दीजिए, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जैसे आप रजिस्टर्ड होंगे आपको मैसेज जाएगा और हमारी टीम, यहाँ जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, उनसे फोन से बात करेंगे। और लगातार आप हमारे, एक बार आपने जहाँ रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद आप हमारा पीछा मत छोड़िए। लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइए, ट्विटर पे कनेक्ट हो जाइए। हम लोग जितने, जैसे मान लीजिए ये वेबिनार अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी हम तुरंत इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, समझ गया। तो जो लोग इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको पता, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, कहीं भी लिखिए, हम जवाब देंगे। अभिषेक जी। हमारे साथ दिलीप जी का ही एक प्रश्न और है कि जी। मॉडल गांव के साथ साथ क्या नगर के लिए भी कोई प्लान है क्या आपके पास? देखिए अभी फिलहाल शुरुआती, चूंकि अभी हम लोग देहात पे कुछ दिन 5-6 महीना काम करेंगे, क्योंकि देखिए शहर में हमें ले जाकर के अपने देहात के प्रोडक्ट तो बेचना भी है और शहर और देहात में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हमारी शुरुआती दौर है तो अभी हम लोग 3-4 महीना यहाँ से जब हम बातों को इस्टेब्लिश कर लेंगे, देन वी विल मूव टू हाउ टू कनेक्ट विद द सिटीज। तो इसका आंसर है अभी फिलहाल हमारा फोकस गांव है और शहर के लिए हम सोच रहे हैं। अभी हमने यूएनडीपी के टीम को बुलाया था उत्तर प्रदेश के, उनके यूपी हेड के साथ, वो लोग शहर में काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे बात कर रहे हैं कैसे हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। बट राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल, इट विल टेक 4-5 months। सौरभ जी, क्या पॉसिबल, किसी व्यक्ति का कहना है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या वेबसाइट अभी आप दिखा सकते हैं क्या इस पर? हाँ बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल, शेयर करो। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करके जी। एक वेबसाइट का रन थ्रू आप लोगों को देता हूँ, जी। उससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। ये हर जगह करना चाहिए, याद करो आज के बाद से। अगर पहले वेबसाइट परिचय करा दिया, ये नियम बना लो वेबसाइट का। ये मॉडल गांव www.modelgaon.org वेबसाइट है। इस पे आप जब खोलेंगे तो एक, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, वो सीधा पंजीकरण कर सकते हैं और आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो उसे क्रॉस करके, और ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है और यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से हर जानकारी के बारे में नेविगेशन मिल सकता है। जब हम इस बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत ही अहम बात और कहना चाहूँगा कि हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन का, जिन्होंने एक बहुत ही आइडिया स्टेज पे ही हमारा समर्थन दे दिया और एकदम शुरुआत से वो हमारे पार्टनर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सपोर्ट दे रहे हैं। तो आईसीआईसीआई फाउंडेशन का भी मैं यहाँ पे खासा उल्लेख करना चाहूँगा। अब ये आप हमारी वेबसाइट का ये होम पेज है, जब आप इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है क्या, और हमको क्यों मॉडल गांव की एक एस्पिरेशन रखनी चाहिए, एक आशा रखनी चाहिए, ये उसका विवरण है, इसकी पृष्ठभूमि है। उसके बाद एक संक्षिप्त में जो हमारे 3 मुख्य कार्यों के बारे में डॉक्टर हीरालाल ने हमें बताया
कि विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर और एफपीओ एफपीसी का डेवलपमेंट, ये 3 जो हमारे मुख्य कार्य हैं उनका यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक है। और आप अगर और नीचे आए तो ये हमारे मार्गदर्शक हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पद्मश्री मार्गदर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीन पे जो उन्होंने काम किया और जो एक बहुत नवाचार के माध्यम से एक बदलाव ये लेकर आए हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो हमें उसकी जो जानकारी है, उसका जो ज्ञान है वो हमसे साझा करते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। नीचे हमारे मानद सलाहकार हैं जो अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड वीसीज हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर हैं। तो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एडवाइजरी बॉडी हम लोगों ने बनाई है जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। ये उनका एक संक्षिप्त विवरण है। उसके नीचे जो सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस है उसका एक विंडो यहाँ पे मिलता है। और अब आप यहाँ से होम पेज से ये हमारे बारे में अबाउट अस का जो एक सेक्शन है, इसमें जो हमारी पूरी पृष्ठभूमि है कि ग्रामीण विकास में एक नई सोच हम एक नई पहल के माध्यम से कैसे लाना चाह रहे हैं, उसका विवरण है यहाँ पे। हमारे विजन और मिशन के बारे में जैसा कि डॉक्टर हीरालाल ने बताया, उसका विवरण है। और जो हमारी पूरी टीम है, संपूर्ण टीम है, उसका यहाँ पे डिटेल विवरण है जो हमारी वेबसाइट पे पाया जा सकता है। इससे लोगों को एक ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरह की एक्सपर्टीज को हम यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। जो हमारे 3 मुख्य कार्य हैं उनके लिए डेडिकेटेड पेज दिया गया है। तो चाहे विलेज मैनिफेस्टो हो, तो विलेज मैनिफेस्टो क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं, विलेज मैनिफेस्टो के मुद्दे क्या हैं, जो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको उपलब्ध हैं। इसी प्रकार आप जब चेंज मेकर के सेक्शन में जाएंगे तो चेंज मेकर के सेक्शन में भी बहुत ही डिटेल में हमने बताया है कि चेंज मेकर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, चेंज मेकर की भूमिका और महत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज मेकर के लिए, जो भी रुचि रख रहे हैं उनके लिए समझना। एक व्यक्ति के अंदर एक चेंज मेकर के रूप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमने एक पर्सनैलिटी साइकोग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को यहाँ पे रखा है। और उसके चयन और सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होगी वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे कुछ अपडेट्स अभी होने बाकी हैं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक बहुत ही डिटेल्ड ई लर्निंग मॉड्यूल बना रहे हैं। और जो भी एज अ चेंज मेकर हमारे साथ रजिस्टर करेंगे उनको हम एक ई लर्निंग मॉड्यूल के कुछ 2 या 3 हमारे वेरिएशंस हैं जिसमें हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो उसमें भाग लें और उसके माध्यम से ज्ञान अर्जित करें। इससे उनको हर उस चीज़ की बारे में जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा जो एक डे टू डे, एक दैनिक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में, एक गांव के परिवेश में, पंचायत के परिवेश में जो जानकारियों की आवश्यकता होती है वो मिलेगी। और उसके बाद उसका एक पूरा प्रोसेस है कि वो कैसे वहाँ से फिर हम उनको एक स्टडी टूर पे भेजेंगे और वो स्टडी टूर से जब वहाँ से वापस आएंगे तो अपने एरिया में कैसे अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एक पूरी हैंड होल्डिंग हम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगे। इसी प्रकार एफपीसी का एक हमने डेडिकेटेड सेक्शन बनाया है जहाँ पे एफपीसी की क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों उसे बनाना चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। एक डिटेल्ड एफएक्यू सेक्शन हमने बनाया है, जो प्रमुख सवाल होते हैं उनके बहुत ही सरल भाषा में हमने जवाब यहाँ देने की कोशिश की है। साथ ही बहुत जल्द अगले अपडेट में जो हमारा अगला वर्जन होगा वेबसाइट का, उसमें हम एक ऐसा लिंक दे रहे हैं कि अगर कोई नया एफपीओ बनाना चाह रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, और अगर किसी का एफपीओ बना हुआ है उसे चलवाने में वो मदद चाह रहे हैं या जानकारी चाह रहे हैं तो उसका क्या रोड मैप होगा, वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, उसका हम डिटेल देंगे। साथ ही एक कार्यक्रम का सेक्शन है, ये भी अगले वर्जन में लाइव हो जाएगा। तो जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, लोगों से वेबिनार के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मीटिंगों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो हो चुके हैं और जो आने वाले हैं, उनकी एक डिटेल जानकारी इस पेज पे मिलती रहेगी। तो अगर कभी किसी कारणवश किसी से कोई एक वेबिनार छूट जाता है, कोई सेशन छूट जाता है, तो उनके पास वो रिकॉर्ड रहेगा कि वो वापस आके उस प्रोग्राम में जो चर्चा हुई, जो जानकारियों का आदान प्रदान किया गया, उसे वो ग्रहण कर सकें। और ये एक संपर्क का हमने सेक्शन बनाया है जहाँ पे जितने भी माध्यम पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे ईमेल हो, चाहे वेबसाइट पे जिस पे अभी हम हैं, चाहे कॉलिंग का हो, चाहे फिजिकल मीटिंग का हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हर पहलू हमने उस पे हमने मॉडल गांव की प्रेजेंस बना रखी है। हर प्लेटफॉर्म पे हम हैं। तो जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी माध्यम से आप ज़्यादा सहूलियत समझें, आपसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं।
और हर तरह से हम और आप मिलके एक मॉडल गांव की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, इसको सार्थक बनाने में साथ में काम करें। यही एक हमारा विचार है कि हमने ये इस वेबसाइट को जानबूझ के कोशिश किया है कि जितना साधारण और सिंपल रख सकें, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके और इसका लाभ उठा सके। तो ये एक संक्षिप्त विवरण है modelgaon.org, www.modelgaon.org वेबसाइट का। हम आपको निमंत्रित करते हैं कि आएं, इस पे अपना पंजीकरण करें, ताकि आप हमारे मैसेजिंग ग्रुप्स में जुड़ जाएं और जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हम आपको उसको अवगत करके रख सकें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी ऐसी आपसे मिस ना हो जाए। और इस वेबसाइट के माध्यम से हमारा एक 24/7 अवेलेबिलिटी का भी एक आइडिया है कि आप और हम भले ही साझा ना हो, साक्षात्कार में हमारी बात ना भी हो पाए, लेकिन इस वेबसाइट के माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है हर गांव मॉडल गांव बनाने का, उस पे आप भी कार्यरत रहें, हम भी रहें और हमारा आपस में जुड़ाव भी बना रहे। तो ये हमारी वेबसाइट है। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी बात रखने का सबके सामने। और अगर कोई किसी भी विषय में सवाल कुछ पूछना चाहे तो हम प्लीज उसको ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। हमारे साथ जितेंद्र जी का एक प्रश्न है कि ये जो आपका विलेज मैनिफेस्टो है, क्या ये एडिट हो सकता है? क्योंकि वो और भी कुछ पॉइंट अपने गाँव के लिए जोड़कर उसको प्रिंट कराकर बाँटना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है अभिषेक, ऐसा है कि काम करने के तो 1 लाख पॉइंट हैं। हम लोग इसको काफी रिसर्च करके एक गांव के में, देखिए अगर एक साथ आपको 50 ईंटा दे दिया जाए, कोई देर लाद दिया जाए तो नहीं चलेगा। तो हर चीज की एक क्षमता होती है, ये ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर इतने मुद्दे में काम हो जाएगा, ये 25 मुद्दे भी कम नहीं है। तो अगर आप वो चेंज करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी ये नेक सलाह है कि 1.5 साल में यूनिसेफ, यूएनडीपी, वाटर एड, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के अनुभव का ये मिश्रण है। कहते हैं ना, मंथन करने के बाद ये अमृत निकला है। पहले आप इस पर काम करिए, उसके बाद आपको किसी तरफ ना जाना पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा। तो राय तो ये है, शुद्ध राय ये है, शुद्ध सुझाव ये है। फिर भी अगर आप कुछ और मुद्दे जोड़ने चाहते हैं, उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यू फील फ्री टू डू दैट, नो प्रॉब्लम। ओके। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक जी। सो हीरालाल सर जी को बहुत बहुत नमस्कार। और हीरालाल सर जी का मार्गदर्शन तो हमेशा से मिलता रहा है। सर, मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है इस मॉडल गांव के ऊपर में कि कुछ इसमें हम लोगों ने कुछ ड्रॉ किया है क्या? कोई प्लानिंग है हमारी कि से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हम इतने सारे गांव को मॉडल गांव में, स्मार्ट गांव में कन्वर्ट कर देंगे? इस तरह की कुछ प्लानिंग है क्या? यस, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी फोकस के मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको बता दूं उसी में। तो वो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का था। वो कह रहा था कि अगर आप ये सोचो कि पूरा जब आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा, आपके पूरे फंड इकट्ठा हो जाएंगे, तब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। तो उसका ये आशय ये था कि आप पूरा समझ लीजिए और आपका प्लान बनाए, जो है बस शुरू हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि ये टॉप डाउन का मामला नहीं है, ये बॉटम अप का मामला है। ये हम दिल्ली, लखनऊ और राजधानी के हेडक्वार्टर से कोई चीज फेंक नहीं रहे हैं। हम गांव में ही गांव के लोगों से गांव के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके प्रश्न जो आपका है, हम लोग 2 जिले को मार्क किए हैं। वो चूंकि मैं ही इसका मेंटर हूं, तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 जिले पकड़े हैं। एक तो अभी मैं जिस जिले में जिलाधिकारी था 1.5 साल बांदा, वहां मुझे बच्चा बच्चा जानता है, वहीं का ये प्रयोग है। तो एक तो हम उस जिले को फोकस कर रहे हैं। और दूसरा जिला, मैं बस्ती जनपद का रहने वाला हूं, मैं वहीं का पढ़ा लिखा हूं, मेरा मकान, दुकान, घर सब कुछ वहां भी मुझे लोग। तो हम लोगों ने अभी ये प्लान ये बनाया है कि इन दोनों जिलों को फोकस करके काम करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी हमने आपसे एक बात कही है क्या, कि हम लोगों के दिल और दिमाग में, सोच में, खून में मॉडल गांव पैदा करना चाहते हैं। गांव मॉडल बने या ना बने, ये हमारे लिए माने नहीं रखता।
लोगों के दिल दिमाग सोच खुद में मॉडल गांव बन जाए, ये हमारे लिए मायने रखता है। इसलिए हम लोग इस पर हल्ला चला रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। अब जैसे आज ही आपके इसरा के इस माध्यम से, ये इसरा आपका नहीं हमारा भी है, हमारा सबसे पहले है, तो अपने इस इसरा के माध्यम से आज 14 स्टेट में हम पहुंच गए। अभी एक कर्नाटका के हमारे मित्र थे, वो हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कर्नाटका में वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ रही थी, बिकॉज दे नो कन्नड़ एंड वी डू नॉट नो कन्नड़। तो अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले कर्नाटका का एक वेबिनार किया। आज आपने 14 स्टेट में इसको फैला दिया। तो हमारा, अब आप कहेंगे अभी ये जो कोरोना आया, तो कोरोना ने क्या किया? कोरोना पे इतना हल्ला हुआ कि जो भी डिसीजन हुआ पूरा देश उसको मानने लगा। तो किसी चीज की कामयाबी का उसका परीक्षण है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल और दिमाग और कान में ये मॉडल गांव को कैसे बसाएं और सजाएं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अभी हम 2 जिले पे फोकस करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर करेगा, चेंज मेकर के रूप में, विलेज मैनिफेस्टो के रूप में, चेंज एपीसी के रूप में, हम एक साथ होलिस्टिक काम भी कर रहे हैं तीनों मुद्दों पे, और अलग अलग भी कर रहे हैं। चेंज मेकर वाले पे अलग कर रहे हैं, एपीसी पे अलग कर रहे हैं, विलेज मैनिफेस्टो पे अलग कर रहे हैं। प्रकाश जी, and appreciate your response, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू प्रकाश जी। अभी और भी किसी के कोई प्रश्न? अभी हमारे पास काफी सारे प्रश्न जो आए हैं, उसमें से काफी सारे प्रश्नों का जवाब वेबसाइट में उपलब्ध है, तो हम उस पर जाना नहीं चाहेंगे। अगर आप में से किसी के भी कोई प्रश्न है तो डायरेक्ट आप माय मॉडल गांव के वेबसाइट पर जाके पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर आपको और भी कोई प्रश्न है इस वेबिनार से संबंधित, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम डॉक्टर हीरालाल जी और सौरभ जी को आपके प्रश्न भेज देंगे। क्योंकि समय हमारा हो चुका है, क्योंकि आप सभी 1 घंटे तक हम बहुत ध्यानपूर्वक आपने बातों को सुना, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ मंदसौर से जुड़े दिलीप धनराज गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय सह कार्यालय मंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से हैं, और साथ ही साथ एक समाज सेवी हैं, जो कि मंदसौर में आत्मनिर्भर मंदसौर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक पहुंचा जाए, कैसे किया जाए, इस सब को चीजों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके कार्यों की गतिविधियां जो देखते हैं, उससे निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं दिलीप धनराज गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वक्तागण तथा सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। दिलीप जी। धन्यवाद अभिषेक भाई। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही संस्थान इसरा इंडिया द्वारा आयोजित इस वीडियो वेबिनार में बदलते भारत की तस्वीर के विषय पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर हीरालाल जी IAS मानस सलाहकार मॉडल गांव, जिनकी परिकल्पना है कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे साथ पधारे मुनीश गंगवार जी, अध्यक्ष मॉडल गांव, सौरभ लाल जी, जिनको अभी मैंने बहुत अच्छे से सुना, FPO सहित आपने हमें आमंत्रित भी किया है। इसके साथ ही इसरा के अभिषेक जी, अतुल भाई एवं उपस्थित भारतवर्ष से जुड़े विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आज इस वीडियो वेबिनार में भाग लिया है। इसके लिए मैं इसरा इंडिया परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, हमारा गांव जब विकसित होगा और मॉडल होगा तब निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं एक बार फिर इसरा इंडिया और मॉडल गांव की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद दिलीप जी। वाकई में आज जो हमारे साथ सब जुड़े जितने भी हमारे वक्ता थे, प्रतिभागी थे, और 14 राज्यों से जुड़े हुए हैं। लगातार इन प्रतिभागियों जो है हमारे साथ लगातार 12 स्टेट, 14 स्टेट, 15 स्टेट से जुड़ते हैं, और
अत्यंत प्यार मिलता है। इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक हौसला बढ़ता है कि लगातार नई नई संस्थाएं जो प्रति सप्ताह हमारे इस वेबिनार में आती हैं और देश भर से, आज त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अनेक राज्यों से हमारे साथ जो एक प्यार मिल रहा है लोगों का हमें, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए डॉक्टर हीरालाल जी और सौरभ जी के प्रति पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, बहुत बढ़िया। और हम लोग बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, फिर जी एक जी थोड़ा दायरा और बढ़ाएंगे। और देखिए, अभी चूंकि कोई परिकल्पना होती है, कोई व्यवस्था बनाई जाती है, थोड़ा समय लगता है। 1 सप्ताह में हमारी ये पूरी वेबसाइट अपडेटेड हो जाएगी। अब साइट को पढ़िए, आप लोग अभी से इंगेज होइए। हम लोग जो भी समस्या होगी दूर करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, चलेंगे धीरे धीरे, नहीं तेज दौड़ेंगे तो गिर पड़ेंगे मुंह भल, तो दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे चलेंगे और हंसते गाते चलेंगे और मॉडल गांव बनाएंगे और घर घर खुशहाली लाएंगे, ये हमारा नारा है। क्या मॉडल गांव बनाएंगे, घर घर खुशहाली लाएंगे, इसका ये स्लोगन है। थैंक यू, थैंक यू। एक मैं आप सभी को लास्ट में एक पॉइंट जोड़ दूं कि इसरा ने, जैसा कि मोहक जी ने आपको बताया कि इसरा की जो वेबसाइट है वहां पर आप घर बैठे बैठे सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में इसरा ने एक ऐप डेवलप कर दिया है जहां पर एक व्यक्ति अपने मोबाइल से ही ऐप के थ्रू सभी सेंटर स्कीम्स और स्टेट स्कीम्स अप्लाई कर सकता है, जिसका उद्घाटन हम अगले सप्ताह करने वाले हैं। हम सभी का, हमारी और हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जल्द ही इसकी सूचना आप सभी को प्राप्त होगी और आप सभी इस कार्यक्रम में भी जुड़ें। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू।